Hello children, this is online class and I am your English teacher and this is English at Ease channel where you can get all of your lessons of your class and the other classes also. Children, today's topic is very beautiful funny story that is based on the life is simple comedy. You know the students, if we don't have laughter in our life, comedy in our life, then the life is boring and motionless and cheerless. Children, today's topic is based on the life is simple comedies and the lesson is Bidesiya Babu. Children, this is English Codes Book of New Pathways, Oxford Publication Press, Unit 5, Section 1. Children, already I have uploaded up to Unit 4 and the second lesson of Unit 5 also. And today's lesson is Bidesiya Babu. That is very funny story and very interesting story. I hope that you will enjoy this story very much. This story relates to Hazaribagh district of Jharkhand. Okay student, in this video you will get the question answers part and the exercises in the description box. Okay student, so that the video will not be too much longer, so that in this video I'll explain you only and after that I will provide you all the exercises and the question answers part in the description box, and you will get the link of the other lessons also in my all videos in the description box. Children, let's start now. Bidesiya Babu. Children, देखो, इस स्टोरी का टाइटल से ही हम लोगों को पता चलता है ये कहानी एक भारतीय कहानी है, विदेशिया बाबू. The word Babu is related to so many interesting things and the ideas of our country. Babu was named to the gentleman once upon a time in the British Raj, especially in Kolkata. The gentlemen, the rich people, the luxurious people who maintains all the luxury in the life, they were called as Babu Moshai. Okay, later on Babu became the title. After that, in the British period, the officers, they were called as the Babus. And after their name, the Babu was added, and yet now we also add the title Babu after the name who are prestigious, who are the teachers, who are the professors, who are the honorable persons in the society. We add Babu after their name. In our Indian homes, Babu is named to the little child also. We name them as Babu, Babua, like that. Okay, and somewhere Babu was named by the British officers who were the Jamindar, who were the landlords, and who were the powerful persons in the society. Okay, लेकिन देखो इस कहानी में ये एक झारखंड राज्य का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का एक गांव की कहानी है. इसमें काफ़ी हिंदी वर्ड्स है. इसका राइटर and Mala Marwa, she has written, and especially she was
a writer and an artist, and she was very famous artist in her period. And after that, that story is related to Hazaribagh district of a Pipli village. Okay, still it is now, and it's in Jharkhand state. You know, Jharkhand is full of nature and hills and the minerals. There are so many mines, and dense forest at Palamu. You know that Palamu jungle, Betla National Park. That is very, and the British period, Ranchi and Hazaribagh, the two cities, the Britishers set up, and they made their summer camp, summer cottages. Still, if you visit Hazaribagh, you will find so many old buildings made by the Britishers. Okay, now these buildings are used as our government office and this schools, central school, Kendriya Vidyalaya, etc. Okay, students, so the story is very familiar to us. हजारीबाग का एक गांव, पिपली गांव की एक कहानी है, जहां एक देवनाथ चौधरी नाम का आदमी हुआ करता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देवनाथ चौधरी कोई विदेशी नहीं थे। कहानी इस तरह से कहता है, अबाउट 20 years ago he had gone to visit grandfather in village किरीमिरी and stayed away for 2 whole months. 2 महीना वहाँ रहे थे। ये 20 साल पहले की कहानी है, लेकिन जब वहाँ से वो लौटे, ट्रेन से लौटे, क्योंकि उस ज़माने में कोई जगह जाना, कोई जगह से आना, और वो भी सूट बूट के साथ, सूट एंड बूट, बूट मीन्स शूज़, ओके, एंड come back wearing shiny new brown boots with black laces and solar topi on his head. इस तरह से बड़ा सा एक हैट, जिसको सोलर टोपी कहा जाता है, और चमकता हुआ जूता, बूट और सूट के साथ जब वो लौटे, लोग उन्हें विदेशी बाबू करके बुलाने लगे, क्योंकि उस समय में सूट बूट पहनना एक बहुत बड़ी बात था। और इस तरह से लोग देवनाथ चौधरी को, ऐसे हम लोग गांव में भी सुनते होंगे, बहुत लोगों को लोग उपनाम देते हैं, नाम के साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। जैसे कि मुंबई से लौटा तो मुंबईया हो गया, दिल्ली से लौटा तो दिल्ली वाला हो गया। तो इस तरह से लोग नाम दिया करते हैं। देवनाथ चौधरी के भी नाम विदेशी बाबू रखा गया। उनके घर में बूढ़ी माँ थी जिसका 100 साल उम्र था। अब विदेशी बाबू का कहानी में हम लोग आते हैं। विदेशी बाबू क्या क्या करते थे? कहानी कहता है, एक्चुअली विदेशी बाबू वाज 2 पीपल, 2 व्यक्ति थे। एक, ही वर्कड एज ए जियोलॉजिस्ट इन द गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस, and on Sundays he worked as an amateur inventor and homeopathic doctor. एक तरह विदेशी बाबू देवनाथ चौधरी सरकारी ऑफिस में काम किया करते थे, गवर्नमेंट सर्वे ऑफिस में वो जियोलॉजिस्ट थे, और साथ साथ में संडे के दिन जब छुट्टी रहता था तब उनका परिचय सोसाइटी में होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में था, और साथ साथ में इनको इन्वेंटर, एक खोज करता। His hobby was inventing. That is the interesting story in that you will get in this lesson. कहानी में ऐसे भी कहा जाता है कि एक समय की बात है, हाथी के राजा, उनका जब जंगल मलेरिया हुआ था, हिकअप्स हुआ था, तब उनको उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, और बदले में एक बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एम्ब्रॉयडेड मॉस्किटो नेट गिफ्ट में दिए थे। ऐसे कहानी कहता है। इनका
बहुत सारा इन्वेंशन के प्रति इनका लगाव था। जैसे कि स्टोरी में कहता है, अमंग द ऑटोमेटिक कैन ओपनर्स एंड 5 सेकेंड मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर दैट बी बाबू मीन्स विदेशिया बाबू इन्वेंटेड वाज हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन। इनका फेमस इन्वेंशन में मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर और केन ओपनर ये सब मैंने कहा जाता है। दिस वॉज द इमीडिएट upstart finder, a little box with big antenna that picked up nerves responses typical troublemakers। उनके पास और एक विशाल आकार का, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे ही लंबा सा एंटीना लगा हुआ एक बॉक्स था, जो कहीं अगर ट्रैवल होता है, विपत्ति आता है, तो इसमें ये कांपने लगता था, शेकिंग करता था। दैट वाज ए ग्रेट इन्वेंशन, ऐसा कहता है। लोग और भी बहुत सारा चीज़ बताते हैं उनके बारे में, जैसे कि किस तरह से हेड हवलदार के सीट के नीचे और एक क्रैकर लगाया जाए, किस तरह से पुजारी झपकी जब लेते होंगे उनके मंदिर से पायस का हांडी चुरा के लाया जाए। ऐसा ही बहुत सारा फ़नी स्टोरी कहा जाता है। विदेशी बाबू बहुत सुंदर गाना भी गाते हैं। ही वॉज़ वेरी फनी मैन, जॉली मैन कहते हैं, जैसे कि बताया गया है। यू विल गेट सो मेनी हिंदी वर्ड्स इन दिस स्टोरी सो दैट इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। माई सेल्फ विदेशिया बाबू ओ डूइंग क्रेजी थिंग्स, येस जी, इफ प्रॉब्लम डेवलप आई ग्लैड टू हेल्प। हेल्प को हेल्प कहा गया है। ये मतलब जैसे कि हम लोग बहुत सारा वर्ड इस तरह से लोग कहते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कहा जाए, इंग्लिश कह सकते हो, जो इंग्लिश के साथ हिंदी को मिला देता है। आई ग्लैड टू हेल्प, हैप्पी इन्वेंटरिंग जी। दैट इज़ द सिंपली सॉन्ग, फनी सॉन्ग ऑफन विदेशिया बाबू ही सैंग। ओके, आफ्टर दैट वन डे व्हाट हैपन, संडे को इनका एंड ये सब बॉक्स लेके वो काम करते थे, ताकि एक दिन एक बैग उनका एंटीना कांपना शुरू कर दिया। हाँ, इट वाज शेकिंग। और आफ्टर दैट नाउ इन द स्टोरी यू विल सी, अरे मोहना बरहना बरहना यू अंडरस्टैंड द नेम, द विलेज नेम, खिचड़ी मोतिया, सबको बुलाने लगते हैं। अरे मोहना बरहना खिचड़ी मोतिया। ही येल्ड आउट टू हिज नेबर्स, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा भाई। लोगों को इस तरह से ही कॉल्ड ऑल द नेबर्स अराउंड हिम, देयर नेम्स वर लाइक दैट, मोहना बरहाना खिचड़ी मोतिया। जैसे कि हम लोग इंडियन नेम्स को थोड़ा सा विकृत करके कहने का एक आदत है। जैसे नाम होगा राम, तो हम लोग कहते हैं ना रामुआ, तो ये एक स्टाइल है बोलने का। इसको डायलेक्ट्स भी कह सकते हो, जैसे बोलीचाली भाषा में हम लोग कहते हैं नाम को थोड़ा विकृत करके बोलना। लालू को लालुआ, लाइक दैट। दूर के सब लोग आए। उनका एक पियोन था जिसका नाम था बदली। बदली ने आके कहते, साहेब, सम पीपल हैव बीन चॉपिंग डाउन pilkhan and banyan trees in the forest, and sahib, the old tiger who lived in the jungle now has fewer places, and after that to hide in, and is rushing about the frightening the people of Pipli। उनका एक पियोन, ऑफिस का पियोन बदली आके कहता है, साहब जंगल में लोग पेड़ सब काट लिए हैं, और वो क्या हुआ, ये एक जो बूढ़े बाघ था, वो बूढ़ा बाघ गांव की ओर आ गया। लोग दौड़ रहा है, पिपली के लोग भाग रहा है, और क्या करना चाहिए लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। आखिरकार इसका कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए। साथ में जिन लोगों को बुलाए थे उसमें से खिचड़ी एक मैड आइडिया दिया, एक पागलपन आइडिया रखा। ही केप्ट एन आइडिया दैट वाज मैड आइडिया। खिचड़ी, one of the neighbors, he said, Babuji, Motia and I will sit here at the edge of the forest and fast, just like the old sadhus। खिचड़ी ने आके कहता है, साहब
कोई बात नहीं है। हम और मोतिया दोनों मिलकर, जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग उपवास करते थे, ध्यान करते थे, ध्यान योग करते थे, ऐसे ही हम लोग करेंगे। और वो बाघ उस योग के कारण में, उस उपवास के कारण में, जैसे कि हम लोग बिना खाकर वहाँ फास्टिंग करेंगे तो बाघ भाग जाएगा। हम लोग को ईमानदारी से, हम लोग का इस योग से, इस साधना से बाघ हम लोग भगा देंगे। वाह! ये आइडिया जैसे ही सुना, और साथ में खिचड़ी ने और एक बात ऐड कर देता है, कहता है जी साहब रिवार्ड हम लोग को दीजिएगा। मतलब इंग्लिश को मैंने पहले कहा, जी दे स्पोक लाइक दैट वे, रिवार्ड। हाँ, यू विल गेट द सेंटेंस, यू कैन गिव अस रिवार्ड साहेब, लाइक वीक्स सप्लाई ऑफ कचोरीज और इवन टिकट्स फॉर द मूवी, टू द मूवीज़। खिचड़ी आके कहता है साहब हम लोग को रिवार्ड दे दीजिएगा, हाँ, कुछ कचौरी खिला दीजिएगा या तो मूवी देखने के लिए टिकट दे दीजिएगा, हम लोग बाघ भगा देंगे। सब लोग बहुत खुश हो जाता है। खिचड़ी और मोतिया, खिचड़ी बहुत फैट था और मोटा ताज़ा था, प्लम्प बॉडी, और मोतिया बेचारा पतला दुबला, लीन एंड थिन मैन, यंग मैन। दोनों मिलकर जंगल के किनारे बैठ जाता है। लोग प्यार करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से बदली कहता है, देखो एक दूसरे से बात नहीं करना, कुछ खाना मत। इस बीच में क्या होता है, एक बहुत फनी स्टोरी का एक जगह है जहाँ पर राइटर ने भी बहुत एम्यूजमेंट के साथ बहुत फनी इसको लिखा है। मीनवाइल मेसर्स के एन एम, मेसर्स के एम जैसे कंपनी में लिखता है ना, बहुत सारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप देखोगे मेसर्स सच एंड सच, ओके। तो लाइक दैट मेसर्स के एंड एम, ये के एंड एम कौन कंपनी है ना, खिचड़ी एंड मोतिया कंपनी। ये दोनों मिलकर बाघ भगाने का एक गठबंधन बनाया और दोनों मिलकर बढ़ गए। और they were in first, they did not eat anything, but in meanwhile Khichdi was very cunning, Khichdi was very clever, he was very clever young man। खिचड़ी तो बहुत चालाक था, क्योंकि पहले ही बता गया बहुत मोटा ताजा था, उसको भूख ज़्यादा लगता था। वो बीच समय में कहता है, खिचड़ी कहता है, उठने के लिए कोशिश करता है। मोतिया कहता है होके, वेयर आर यू गोइंग खिची खींच, oh just to the the bathroom, okay। That is the, see the pronunciation part of the of Motia and other people of Pipli village, okay, okay। So that they pronounce like that way, okay, okay। मतलब हिंदी इंग्लिश मिला के ये लोग कह रहा है। तो खिचड़ी चालाकी के साथ कहता है मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है, होके होके, ऐसे ही कहता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, खिचड़ी बहुत चालाक था। वो रास्ता में एक क्या करता है ना, व्हेयर देयर वाज ए गुआवा ट्री लेडन विथ फ्रूट, और वो खिचड़ी जाके 3 गुआवा खा लेता है, 3 गुआवा खा लेता है और अच्छा से पानी पीकर अपने को फिट करके आके बैठ जाता है। मोतिया पूछता है, वन आइड, एक आंख से देख के पूछता है, टू द बाथरूम हुआ? एंड खिचड़ी सेड, अरे यस यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, क्यों पूछते हो। इस तरह से एक कॉमेडी पार्ट है। लाइफ इज़ ए फुल ऑफ कॉमेडी, दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू। इन द नाइट यू सी व्हाट हैपेंड देयर। राइटर ने बाघ को भी बाघ जी लिखे हैं, टाइगर जी बोले हैं। जैसे कि बिस्किट को भी हम लोग पार्ले जी कहते हैं आज के ज़माने में, ऐसे ही राइटर ने भी बहुत कॉमेडी के साथ टाइगर को भी टाइगर जी कहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइगर जी देखते हैं 2 आदमी फास्टिंग कर रहा है, चलो आज के लिए तो मेरा हो गया। ही थॉट प्लम एज ही सॉ खिचड़ी ऑन हीज मैट। मैट पर बैठा हुआ ध्यान करता हुआ खिचड़ी को देखकर टाइगर जी को लगा ये तो बहुत मोटा ताजा है, ये ठीक है। द अदर इज़ टू स्किनी, वो बेचारा पतला दुबला, चमड़ा भर केवल है उसका।
तो क्या किया? सो ही क्रिप्ट साइलेंटली एंड देन जस्ट एज ही लिफ्ट ऑन टॉप ऑफ खिचड़ी ही stopped खिचड़ी was lying there petrified. petrified में डर में बेहोश हो गए। खिचड़ी तो मोटा ताजा था, जैसे ही बाघ उस पर उछल पड़ा, लिफ्ट ऑन टॉप ऑफ खिचड़ी, ऐसा ही वो खिचड़ी का तो जान निकल गया। ये वाइट धोती कुर्ता में जो है, दैट इज़ खिचड़ी, एंड दैट इज़ सैफरन कुर्ता एंड धोती, ही इज़ मोतिया। ओके, मोती से मोतिया। खिचड़ी तो गए। अब देखो बहुत फनी थिंग क्या हुआ। ही वॉज सो टेरिफाइड देन ही टू लाइक द टाइगर जी हर्ड इट ए टेरिबल हॉरिबल साउंड एनफ टू मेक इवन ए टाइगर्स हेयर स्टैंड ऑन एंड। इट वॉज रम्बलिंग। लेकिन इधर वो खिचड़ी का तो मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रहा था। जोर से कोशिश करने के बाद भी स्क्रीम ट्राइंग टू स्क्रीम बट नो वॉइस केम आउट ऑफ हिज थ्रोट। आवाज़ नहीं निकल रहा था डर के मारे, लेकिन इतना जोर से एक आवाज़ सुनाई देने लगा, रम्बलिंग रम्बलिंग रोलिंग रोलिंग साउंड, ग्रम्बल रम्बल। ये साउंड किसका था? ये मोतिया का साउंड था। ऐसा साउंड था जैसे कि 100 लायंस वेर अप्रोचिंग। टाइगर को तो पता नहीं चला ये शेरों की आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ही रिट्रीटेड स्लोली इनटू द फॉरेस्ट वेरी वेरी एनॉयड। बहुत बेचारा दुखी होकर, क्योंकि उसको इतना अच्छा मोटा ताज़ा खिचड़ी मिला था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। डर के मारे बेचारा बाघ अपना जंगल की ओर चले गए। Well, let's all run away fast, he will say. Now that we have got rid of one tiger, only to get stuck with 100 lions. असलियत में क्या है? The terrifying rumbling came from dear Motia Bhaiya's hungry stomach crying out truthfully for food. मोतिया का पेट में चूहा दौड़ रहा था और भूख के मारे बेचारा का स्टमक से ऐसा जोर आवाज़ निकला ताकि टाइगर भाग गया। द टाइगर रैन अवे टू द फॉरेस्ट। इन फैक्ट दैट्स व्हाट गेव विदेशिया बाबू द आइडिया ऑफ द रम्बलिंग रिवॉल्वर। अब एक रम्बलिंग रिवॉल्वर खोजने का एक नया प्रेरणा, इंस्पायरेशन विदेशिया बाबू को मिलता है। विदेशिया बाबू he realized that Motia's honest fasting had given him a wonderful idea for chasing away angry tigers. ऐसा बाघ को, ऐसा जंगली जानवर को भगाने का एक नया आइडिया विदेशिया बाबू को मिलता है। मोतिया को, एंड मोतिया हु इज़ द को इन्वेंटर हैज़ रिसीव्ड द वंडरफुल रिवॉर्ड ऑफ फ्री कचोरीज फॉर लाइफ मेड बाय विदेशी बाबूज मदर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाफिंग, दैट इज़ द कॉमेडी। और मोतिया जो इनके साथ एक असिस्टेंट थे, को इन्वेंटर थे विदेशी बाबू का, इनको ज़िंदगी भर के लिए रिवार्ड मिलता है। चलो मेरा माँ का बना हुआ तुम कचौड़ी खाते रहना। ऐसे ही मोतिया का ऑनेस्टी को सम्मान करते हैं। एंड आफ्टर दैट गांव के लोग, पिपली गांव के लोग फिर से रीप्लांट सैपलिंग ऑन इन द पैच व्हिच the tree thieves had cleared, and with the monsoon being so good, the jungle is looking thick and green again. Tiger Ji has lots of places to hide in now. जंगल को फिर से दोबारा ऐसे ही ग्रीन प्लांट से भरा हुआ मिला। लोगों ने प्लांट्स लगाया। बरसात आते ही चारों ओर हरा भरा हो गए।
जंगल बड़ा हो गए और उस बाघ को अब छुपने का जगह मिल गया, हैबिटेट मिल गया और उसको दोबारा लौट के नहीं आना पड़ा। That is the thing, student, that I hope that you have enjoyed this video, and very soon you will get the all exercises and other parts in your description box. And after that, at last, Videsya Babu will still return to Pipli and sing. अंत में आप स्टोरी में देखोगे विदेशी बाबू गाना गाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।